एकदम क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं हो जाए। ओके सर, विथ योर परमिशन आई बिगिन। आइए आइए, आज एक सरप्राइज है, आज बिगेस्ट प्राइज है उसके लिए जो आज स्माइल नहीं करके दिखाएगा, चैलेंज कर दे हमें, वो स्माइल 2 मिनट तक नहीं करेगा, उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राइट? ओके, सो विद दिस टुडे, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल ऑन आयु क्लाउड। आज हमारे स्पीकर हैं प्रदीप सिंह सर, जो हमेशा कैडिला की तरफ से स्पोक पर्सन रहे, लेकिन हमें हमेशा आयु के ही लगे हैं। साथ में अभिनंदन सर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हु इज ऑन द वे, आज वो भी स्पीकर है। अभिनंदन सर का कहना था कि हम लोग मुस्कुराते बहुत कम है, खासकर आयु की फैकल्टी। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं एक आज मुस्कुराहट का, हंसी का एक सेशन रखा जाए। तो उसमें हमने कहा सर फिर वो अटेंडेंस नहीं रहेंगे, वो पैनलिस्ट रहेंगे। तो आज आप सबको एनवायरनमेंट डे की भी आप सबको बधाइयाँ। स्माइल के साथ में आज सारे फैकल्टी, R&D स्टाफ, उनको भी हमने कहा है कि आप पैनलिस्ट में आइए। सबको ओपन चैलेंज है, जो मुझे मुस्कुरा के नहीं दिखाएगा, 2 मिनट तक चैलेंज देगा, उसे मैं कैश 501 रुपीज का मिलेगा। अभिनंदन सर हैज ज्वाइन। सो आज दोनों स्पीकर को मैं एकदम शॉर्ट में जो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज अभिनंदन सर इज स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजर एट आयु, प्रदीप सर सीनियर मैनेजर L&D डिपार्टमेंट कैडला से है। लेकिन दोनों का मैं आज एक कॉमन इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। दोनों ही एवर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सेशन, एवर स्माइलिंग, एवर एनर्जेटिक एंड वेरी डायनामिक, वेरी सपोर्टिंग। सो दोनों की मैंने कॉमन इंट्रोडक्शन दे दिया विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आई बिगिन विथ द फेमस लाइन्स by Kathleen J. Edgar. Smile a while, and while you smile, another smiles. And soon there are miles and miles of smile. Just because you smiled, I wish your day is full of smile. Very, very good morning. So quickly now I invite Abhinand sir, who is on the way, and this session and its topic is brainchild of Abhinand sir, who has given the topic to this: come, smile, relax, and improve your happiness quotient. So over to Abhinand sir for his word, and then I will invite Pradeep Singh sir, who has so many surprises in store. So over to Abhinand sir, quickly. Yeah, hello, good morning. Sorry for some disruption because of some time changes. I am traveling between one office to another and I'm unable to give you a peaceful sound in the background. So sorry to you all. Also, but we can see, sir, the greenery behind you. Today, Environment Day, and we can see the green plants, passing up. Yeah. That is also not good. It doesn't give a good happiness joy. And they see something different. Anyway, so, it's an important topic which I always love and like, not only for, students, but mainly for the corporate guys. This is quite an important topic because over a period when you go through your corporate career, you realize that, you have been in a rat race and somewhere you are depriving yourself of happiness. And I have gone through such sessions in past with my career at ABN AMRO specifically, where they used to challenge with lot of leadership session in motivation and other thing, but they were used to be specific on how you are going to make your employee happy, motivate them so that they are charged enough to perform well and they feel that the company is the best one to work happily. That was something different where the productivity index of ABN AMRO was highest among all the bank. It is because they always focused on happiness of the employee and that's how they performed well. And because of that only, because the happiness was high, they performed well. The another lacuna was, that was the asset. When it came to ABN AMRO high ups, they sold it off because it was available at a very premium price. So that is also a negative thing. But coming back to happiness, there are 4 hormones which
makes us happy, and they are very crucial. And this was taught to me by my mentor, Dr. Tara Swart. I used to funnily call her Tara Mausi. तारा मौसी ने मुझे जो सिखाया है, तो वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. And still whenever there is a problem or there is something where I feel, there are a lot of people in your industry, type A characters, bulldozing everything, bullying, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है. How to manage them? There are other types of people which are mellowing, कि उनसे कैसे काम निकलवाना. So Tara is quite good at managing people, and she is a neuroscientist. तो वो हमेशा हर एक चीज उस वे में समझाती है. आपका स्लीप डिप्रिवेशन है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, जेट लैग को कैसे मैनेज करोगे. दो स्टूडेंट्स को इस एज पे ये सब चीजें इट विल नॉट बी फोकस्ड. लेकिन फ्रॉम हैप्पीनेस पार्ट, there are 4 hormones which is there, which is endorphins, dopamine, serotonin and oxytocin. These 4 hormones are there in your body and that helps you keep you happy. आप अगर endorphins को लीजिए, this is the one which is being released when you do exercise. सुबह सुबह आप 30 minutes का exercise करेंगे तो it gives you a lot of happiness. You feel good about it. आप लाफ्टर करते हैं, सुबह क्लब्स में लाफ्टर करते हैं तो आपको एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, and that makes you happy. And today I expect you will get some kind of happiness buzz, so you will be able to do such thing. Then there is one more hormone which is there, which is more focused for me also, dopamine. तो डोपामाइन लेवल जो आपके अप डाउन होते हैं उसकी वजह से आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है. और डोपामाइन लेवल इज रिलेटेड टू योर मोटिवेशन स्पीच. कि आपको कोई मोटिवेशन मिलता है तो योर डोपामाइन लेवल गोस अप. आज क्लास में बोला, किसी ने खड़ा कर दिया है कि ओ यस अनुज, यू हैव डन वेल, यू आर गुड, सो अनुज का डोपामाइन लेवल विल गो अप लाइक एनीथिंग. और इन द social media or everything, somebody has praised you, your dopamine level goes up. So that's where it comes into picture. आपका dopamine level तब भी हाई जाता है आप कार खरीदते हो, नया घर खरीदते हो. So आप जब भी देखते हैं अरे आज कार ली है, उस दिन आपका dopamine level हाई रहता है. और today you got a new iPhone, तो आपका dopamine level is always high. So that's where it triggers you. It's a short-term happiness. Then it comes to serotonin. Serotonin is again a very crucial element. कि आप कब is more crucial in a way कि आप किसी को giving देते हैं, thank देते हैं, तो आपका serotonin level high जाता है. The joy of giving, the term of joy of giving is always there. आप किसी बच्चे को है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको कुछ देते हो तो उसके अंदर जो स्माइल आती है उसकी वजह से आपका serotonin level high जाता है. So if you look at it, the more of the fund which comes from big shots like Bill Gates Foundation or other things, so it comes from serotonin. And the last but not the least is oxytocin. Oxytocin is such a critical element कि आपको कहीं से भी मिल सकता है. Today oxytocin level आप सबसे पहले, I don't know, lot of mothers are there. तो सबसे पहले आपका जब child birth होता है, you get that level goes up like anything, and that's where that feeling never goes up. So जादू की जप्पी है वो आप किसी को भी देते हो तो आपको मिलता है. If you give it to your father, mother, you get the oxytocin level. तो वो चीज जो है in terms of any sorrow, अगर कुछ दुखद समाचार है, if you help, तो जादू की जप्पी, from मोना भाई MBBS आप देखते हैं, so that level helps you a lot. और ऑक्सीटोसिन आजकल तो बनाते हैं, गाय को बिचारी को दिए जाते हैं. आई विल नॉट से बिचारी एनीथिंग. तो ऑक्सीटोसिन लेवल से उसका मिल्क लेवल जो है एकदम शूट अप हो जाता है. सो द साइंस हैज गॉन टू दैट लेवल आल्सो, दैट दे आर गिविंग इट टू एनिमल्स and they are giving you more milk out of it. So oxytocin is more important because it is more related to giving hugs, more natural है, यानी sympathizing है, इन सब से आता है. So it is more of scientific thing which is happening. So I will not get into details of everything, लेकिन these are more important for you as a manager, as a leader, कि आप कैसे इनको use करते हो
to generate hormones level ups and down. Make sure that your colleagues, your friends, your subordinates get well. And also leaders use one more thing, adrenaline. यानी कि आप उसको बजिंग करो तो उसको चैलेंज देते हो तो वो लेवल हाई जाता है. यानी कि इफ यू लुक एट CEO लेवल्स, उनका एड्रेनालाइन लेवल वेरी हाई होता है. यानी कि वो हायर एंड फायर मोड में ही रहते हैं बिकॉज उनके अंदर एक जोश होता है. So good leaders use both the tricks, adrenaline and serotonin together. But over to Pradeep, because he is into leadership training and other thing, not like me, who is a learner, always say agile faculty. थैंक यू अभिनंदन सर, बहुत अच्छा बताया आपने 4 प्रकार के, और कब हम लोग वो यूज करते हैं, अब उसको हम नाम भी दे सकते हैं साइंटिफिकली. बहुत अच्छा बताया. आज कुछ स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए हैं वो एक्चुअली में बड़े जोवियल हैं. खासकर मैं नाम मेंशन करना चाहूंगी मोनल दादुक का, और वृंदा इज दो वेरी सीरियस स्टूडेंट बट स्माइल कर सकती है, और उमंग पटेल, तड़वी, अरस्तु बहुत अच्छा बच्चा है, पर मैं हमेशा देखती हूँ अरस्तु सीरियस है, तो अरस्तु ये तुम्हारे लिए सेशन और तुम लास्ट तक रहना बेटा उसमें, ठीक है. आई सी गीता ऑल्सो. सो अब सर जो आपने कहा था चैलेंज का एड्रेनलिन रश जो है वो मैं इसके लिए प्रदीप सर को दे रही हूँ चार्ज. उसके पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि जो आज एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट सबको थ्रो किया है ओपनली, कि जो बिल्कुल सीरियस रहेगा 2 मिनट तक और चैलेंज करेगा मुझे कि मैं बिल्कुल 2 मिनट तक मुस्कुराऊंगा नहीं, तो उसे 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से रहेगा. साथ में और 3 इनाम मैं अनाउंस कर रही हूँ. सबसे बेस्ट जो हंसेगा भी और हंसाएगा भी, उसको 251 रुपए का इनाम. 151 जो सेकंड नंबर पे हंसाएगा सबको और हंसेगा, और तीसरा जो थोड़ा कम हंसेगा और दूसरों को थोड़ा कम हंसाएगा, उसको 51 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. सो नाउ विद दिस अनाउंसमेंट आई गिव द चांस टू प्रदीप सर. So thank you so much, Abhinand sir. Again, the moment you appreciated, my dopamine got released. So thank you. So जो आपने बताया, आई थिंक इसको डोज बोलते हैं, DOSC, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स. So this is a good dose which everyone should take every day. A dose of DOSC, dopamine, oxytocin, serotonin and endorphin. So सबको लेना चाहिए. I think let's not make it very formal today. So मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मैं बोलना शुरू करूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो ट्रेनर्स हैं, एंड एज अ ट्रेनर वी फेल इन लव विद आवर ओन वॉइस. सो हमको तो खुद की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है और हम घंटों सुन सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट कि इस बार हम लोग वीडियो कैमरा ऑन करें, और जो लोग सब लोग अगर बोलेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा. सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आप कुछ बहुत ही सीक्रेट या हिडन काम नहीं कर रहे हैं तो यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा. गुड टू सी ऑल दी स्माइलिंग एंड दैट टू स्माइलिंग. जो सीरियस रहेगा सर उसको 501 का इनाम मिलेगा सर. कैश प्राइज में आज रखी हूँ सबके लिए. ओके. तो इस बीच में मैं सबको जज करती रहूंगी बाय फेस. अरे पॉलिमी मैडम, यू कम समवेयर एल्स और जॉइन समवन एल्स आल्सो. मुझे यादव सर से सुनता हूँ. I'll tell you. सर एनीवे सर. प्रसन्नजीत करके है नेहा मैडम, उनको भी ले लीजिए आप इसमें. सब स्माइल तो कर रहे हैं सर. मैं कैमरा लेके बैठी रहती हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है. शायद जजमेंट में उसमें भी मुझे वहां पे भी मिल जाएगी मदद. सुजय सर, आपको इनाम मिलने की चांसेस हैं क्योंकि आप बहुत सीरियस आज बैठे. शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर्ली, ये एक रीजन हो सकता है. सुजय सर, कैन यू हियर अस? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बराबर. हेलो. हाँ सुनाई दे रहा है. You look serious. So you are likely to win the prize of 501 rupees, sir. No, not like that. Now he's lost. Now he's lost. अभी गया हो, आपने स्माइल कर दिया. ऐसे ही देंगे नहीं किसी को, तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड ही होता है. 50% डिस्काउंट और नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वो मिलता किसी को नहीं. पूर्वी मैडम, आप कैमरा ऑन करिए प्लीज. आलोक सर,
हाँ सर, अनम्यूट भी कर लीजिएगा बाद में भी। जी 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 हाँ सर, मैम। मुस्कुराहट तो आ ही रही है, दिख रही है मुझे। और कुछ लोग मास्क लगाए हैं तो उनको थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाएगा। और एक गाना की लाइन भी है, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। तो यहाँ तो कोई गम नहीं है। ठीक है, ओवर टू प्रदीप सर। नहीं, बोल दीजिए आप। बस ठीक है सर, मैं तो कैश प्राइस बता दी हूँ, जो सबसे अच्छे से हंसाएगा हो सकता है आपको ही मिल जाए। अगर सबने हंस दिया हमारा वही प्राइस है जी। बट आप कुछ बोल रही थी, आप पूरा कर दीजिए, मामा रास्ता बोल जाएंगे। नहीं सर, मैं भूल ही गई सर। तो आपके मामा रास्ता भूल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अगर जी। आप कहानी शुरू कर रहे हैं, खत्म नहीं करे तो मामा रास्ता भूल जाते जी सर, हैं। मेरी कहानी खत्म होगी। प्रदीप सर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ। और उसके बाद ये ओपन चैलेंज है, जो पहले स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं एक आपको थोड़ा सा दूंगी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और उस हिसाब से ये पूरा चलेगा। सो प्रदीप सर। और एवरीथिंग भी विद इन दी वॉल्स, इसमें कोई भी बाद में इसका कुछ टीका टिप्पणी ऐसा करना अलाउड नहीं है। उसमें एनालिसिस पैरालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ बोला वो यहीं खत्म हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर गहन चिंतन या उसके ऊपर दो और कमेटी बनाने या नेक्स्ट एजेंडा तय करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो डिस्कस होगा या जो भी होगा यही होगा, वो खत्म हो जाएगा आज के बाद। हाँ, इसीलिए we are not going live on Facebook Yes. or social media, Yes, yes. so that it remains internal. Yes, Yes, sir, sir. yes. So हमारे अंदर की बात है। So can we start? हाँ, संदीप सर, ज्ञानचंद्र सर और कशन भाई, चेतन भाई साहब, आप लोग दिख नहीं रहे हैं तो आप लोग कंटेस्ट से बाहर हो जाएंगे। मतलब सीरियस वाले में आ जाएंगे तो मेरे को 500 रुपए को बहुत डिवाइड करना पड़ेगा बहुत लोगों को। वो 20 रुपए देते अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ वही है सर। आज ज्ञानचंद्र सर बच गए, नहीं तो ज्ञानचंद्र सर को भी 500 रुपए मिलने के चांसेस थे। Okay. Right. So thank you so much for your participation and your lovely smiles in the morning. बहुत अच्छा लगता है सुबह देख के। Motivators also need motivation. So हम लोग भले कितना भी मोटिवेट करते रहें, लेकिन हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। Your smile is the biggest motivation for any faculty. So सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप चिंता मत कीजिए, गूगल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जो गूगल ऑलरेडी टाइप करके रखा वो हटा दीजिए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। सो इट विल बी सिंपल योर लाइफ दिस थिंग, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। पहला चीज, आप में से किसी को याद है लास्ट टाइम पे आपकी पिटाई कब हुई थी और क्यों हुई थी? Who would like to share your experience? हाँ, संदीप सर ने हाथ उठाया था सर। संदीप सर, आपने हाथ उठाया? Anyone can say. Anyone can say, अनम्यूट हाथ करके उठा के और स्टार्ट हो जाइए। ओपन कंपटीशन है। नहीं, पुलिस से नहीं, घर की बात हो रही है सर। उसमें वाइफ का भी शामिल है। वो नहीं शामिल है, वो नहीं शामिल है। वो घर वाला मतलब आंतरिक विवाद शामिल नहीं है, मम्मी पापा वाला, ये वाला नहीं। मम्मी पापा या टीचर वाला? हाँ, टीचर वाला। हाँ, कौन? प्रसन्नजीत सर बोल रहे हैं। हाँ चलिए प्रसन्नजीत सर जी, आपका टर्न लग गया। टर्न, यस सर। इस बारे में लास्ट पिटाई आपने कब खाई थी? जी जी सर। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, बचपन में होगा शायद। सर अभी बोला गया था कि जिसको याद हो वो वाली बता दीजिए करके सर। हाँ तो मैंने तो हाथ नहीं उठाया। अच्छा, आपने अनम्यूट कर दिया तो हमें लगा कि आप ही बताने वाले हैं। चलिए, ये भी एक। मैं अनम्यूट ही था। अच्छा ठीक मैं है। ऐसा तो नहीं कि इतना बार हुआ कि भूल गए लास्ट टाइम कब खाई थी? नहीं सर। बोले सर कौन कौन सा बताऊं, बहुत बार हो चुका है सर, मतलब होते रहता है सर। नहीं सर, सच में बचपन में ही था, उसके बाद तो याद। तो बचपन है, अभी कहाँ मरा है सर? तो बचपन तो जिंदा ही है अभी। अभी तो हाँ, आप बच्चे कहाँ बड़े हैं सर? एग्जैक्टली सर, पर वो याद नहीं है कि एग्जैक्ट कब हुआ था, इतने छोटे सर। सर बहुत स्कूल में होंगे शायद। हम हिम्मत का काम है। रणधीर सर, आप बताएंगे सर? कोई भी बता सकता है। मैम मुझे याद नहीं कि ऐसा कौन सा दिन था। वैसे भी प्रोफेसर जो है माने जाते हैं एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, भूलने की आदत पड़ी रहती है। जी, देखें किसकी शार्प मेमोरी है। व्यास सर बिल्कुल वेट कर रहे हैं। या आप में याद तो सबको होगा, लेकिन कई लोग शेयर नहीं करना चाह रहे। नहीं, एक्चुअली सर याद होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम पिटाई बचपन में ही होती है और ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। तो वो लास्ट टाइम कब थी और कब पिटाई हुई थी, ये बताना बड़ा मुश्किल है। सर हमको ABCD तो अभी भी याद है ना सर।
ABCD और पिटाई में तो फर्क है सर। सर वो भी 20 साल पहले हुई थी। और शायद उसी लिए हुई होगी। एनीवन, मतलब हम लोग बताने नहीं चाह रहे, ठीक है, मतलब तो समझ गए। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो पिटाई हुई नहीं है, या इतनी हुई है कि मतलब समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। ओके, तो सर तो हम ये ही लोग को क्वेश्चन, शुरू करना पड़ेगा फिर। हाँ सर ये क्वेश्चन तो, हाँ हम नहीं ही तो लोग को ढक करना जाएगा, पड़ेगा। हाँ ढक जाएगा ये। हमने तो खूब मार खाई है। हम तो भगवान की दया से ऐसे विद्यालय में पढ़ते थे कि हमारे सारे टीचर बड़े हिंसक थे। और वो पहले लात से शुरू करते थे, बात बाद में करते थे। 1 मिनट हो। तो पहले ही पिटाई होती थी हमारी। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि होमवर्क करने के दिया जाता था, पहले ही पीट लेते थे। बोले क्यों, कलम है नहीं। तो बोले तो हमें मालूम है तुम करोगे, तो है नहीं, तो हम पहले ही तुमको एडवांस में मार के जा रहे हैं तुमको। अब तुम करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ टीचर हमारे उस लेवल तक हिंसक थे। हाँ ठीक है, हमारा बहुत उनसे प्यार था, हमारा बहुत इज्जत सम्मान है। आज भी हम सारे शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, सारे टीचर से हमारे ऑनलाइन या हम ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। उनसे हमारी रेगुलर बात होती है, जो हमारे 6th से 12th वाले थे, हमारे लाइफ के बहुत करीब है। लेकिन मार बहुत खाई है, वो पक्की बात है। और जिससे ज्यादा मार खाई है वो शायद उतना ज्यादा करीब है हमारे, क्योंकि वो प्यार था, वो उनकी मार नहीं थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर उन्होंने हमारे कान खींचे नहीं होते तो आज हम मास्क कहाँ बांध रहे होते। तो अगर कान हमारे वेस्टिजियल अगर ऑर्गन्स हो गए होते तो आज हमारा मास्क टिकता नहीं। तो अच्छा था कि उन्होंने हमारे कान खींच खींच के हमारे जो कान को बराबर स्ट्रांग रखा। तो हम तो बहुत मार खाए। लास्ट टाइम पे हमको याद आता है कि हम बॉटनी में हम मार खाए थे टीचर्स ने। तो हमने कुछ किया था, तो हमारा हिंदी माध्यम स्कूल था, तो मैंने इंग्लिश में पेपर किया था। इंग्लिश में थोड़ा अलग हट के मैंने किया, तो उसी बात पे मार पड़ी थी कि तुम ज्यादा होशियार हो। तो हम लेके गए कि हमारा सवाल सही है, जो आपने लिखा हमने इसका आंसर सही है। तो इसी बात पे हमको कूट दिया कि बोले तुमने इंग्लिश में क्यों लिखा। तो हमने कहा बस लिखा तो सही है। बोले ना, इंग्लिश में लिखा है इसलिए तुमको जरूरत दिया गया है। तो हमारा उस तरह का था। तो हम मार खाए, चुपचाप आके अपनी जगह बैठे के। लोगों ने पूछा नंबर बढ़ गया, हमने हाँ बढ़ गया। हमें मालूम था क्या बढ़ा है। तो ऐसा है, हमें तो याद है कब कब मार खाए। घर पे भी बहुत मार खाए, पापा से एक आध बार मार खाए। होमवर्क मतलब अच्छी बातों के लिए नहीं, ऐसी बातों के लिए मार खाए कि एक बार साइकिल खो गई थी, तो उसमें मार खाए कि साइकिल बिना ताले के लगा के रख दी थी, तो चली गई। घर आए तो बोले साइकिल कहाँ है, चली गई। तो एक पढ़ा कि अब दोबारा याद रखना। उसके बाद साइकिल मिली नहीं, सेकंड हैंड साइकिल दे दी गई कि अब ये चलाओ बेटा तुम, खो खूब। तो हमारा तो मतलब बहुत ऐसा रहा, इतिहास हिंसक रहा है सर। अब आप लोग कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। हाँ। अगर किसी को बहुत जोर से हंसी आ रही हो और वो हंसी आप चैलेंज कर सकते हो कि सबसे अनोखी हंसी है, तो उसमें आपको 501 रुपया कैश प्राइस मिल सकता है। धवल सर, आप हंसना ट्राई करना चाहेंगे सर? इनफैक्ट इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ आगे इस तरह से बढ़ा देता हूँ कि आपका फेवरेट एनिमल कौन है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फेवरेट एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट कोई भी कौन है, क्यों है, आप कैसे रिजेंबल करते हो, कुछ चीजें बताओ उसके बारे में, जो वो क्वालिटीज आप अपने बारे में देखते हो, और उसकी हंसी आपको हंसनी है। अगर वो पक्षी या प्राणी आपके सामने हंसे या आप इमेजिन करिए वो हंसेगा, तो किस आवाज में हंसेगा, कोई भी बोल सकता है। सर बच्चे तो शर्मीले होते हैं, यहाँ हमारे फैकल्टी भी बहुत शर्मीले हैं सर। कर दीजिए सर, जौहरी विंडो बढ़ जाएगा आपका। सेल्फ डिस्क्लोजर जरूरी है। एनीवन टेकिंग द चैलेंज? व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, आप कौन सी क्वालिटीज अपने आप में देखते हैं। थर्ड, आपको उनकी हंसी हंसनी है। आज आप माला माल हो जाएंगे। कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सब 500 रुपए देंगे आपको। हमारा हिस्सा याद रखिएगा। अच्छा मैं थोड़ा टिप दे देती हूँ। मुर्गी होती है ना, मुर्गी या मुर्गा, वो देखो कैसे हंसती है, रुक रुक के हंसते हैं कई लोग, ऐसे हंसते वैसा हंस के बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा, एक मनुष्य ही है जिसको सौगात मिली है मुस्कुराने की, हंसने की। तो नॉन लिविंग्स तो हंसते नहीं, पर आप उसी स्टाइल के हंस सकते हैं। मदन कटारा बहुत अलग अलग टाइप की हंसी बताता है आपको, बंदर वाली हंसी और भालू वाली हंसी। मदन कटारा हंस के दिखाता है बकायदा, बंदर कैसे हंसता है। और ये
मोनल हाँ, का कुछ जवाब आया है। हाँ, धधुक मोनल तो बहुत हमारा अच्छा स्टूडेंट है, बीएससी केमिस्ट्री सेम 2 का बच्चा है। तो उनको धधुक, मौका दिया जा सकता है क्या? हाँ धधुक आ जाओ, उसको पैनलिस्ट में ले आइए। धधुक मुझे वैसे भी बहुत हंसाता है क्लास में। मोनू एडेड। हाँ एडेड। धधुक चलो, कैश प्राइस 501 का इनाम मिल सकता है। कहाँ गए नहीं मोनल? चाहिए मैम, नहीं चाहिए। अरे अरे पैसा हमें दे देना, मोह माया हमें बहुत प्यारी है, तुम हंसी हंस दो। तुम हंसी हंस दो, सच्ची बात है। और उसका ये उल्लू रखता है वो मुझे बड़ा बहुत पसंद है, उससे क्या मुझे भी बात शेयर है। किया है। हाँ। यस मोनल चलो। दादू पूरी क्लास में पूरे सबको हंसाता है ये। उल्लू के BSc पीछे मैं क्या तो लॉजिक है? कमेंट मारता हूँ मैम। हाँ क्या करते मैं हो? हंसाता नहीं, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कमेंट मारता हूँ। अच्छा चलो कमेंट ही मारो, तुम्हें कॉमेडियन के लिए बोला भी नहीं हमने। अभी तो तुमने हैं करके बताया मुझे। बट उल्लू का रीजन बता दो। क्या सर? ये उल्लू क्यों रखा है आपने अपना पिक्चर में? सर मैंने पहले कई चेंज किए। हाँ मैं ऐसा रखना चाहता था कि कुछ ना दिखे सबको। अच्छा। फिर मैंने एक वॉलपेपर डाउनलोड किया, ये उल्लू वाला, ये मैंने रख दिया फिर बाद में। कोई कुछ तो तुम्हारी लाइकिंग होगी, कुछ तो सोचा होगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है। नहीं तो उसकी उल्लू ही आंखें क्यों पसंद है कि उसका चेहरा पसंद है कि वो उसकी 270 आंख डिग्री? है मैम। उसकी आंखें पसंद है। वेरी गुड। कैसी है उसकी आंखें, कैसी हैं? 270 डिग्री पे अपना घुमाता है वो गर्दन उल्लू। और आप भी रात को पढ़ते हो, वो भी रात को जागता है। शर्मा रहा है एक्चुअली। हाँ वो रात को जागना बहुत अच्छा लगता है। रात को जागना वो, तो ये उसका रिसेम्बलेंस है। अच्छा। ठीक है। नाइट क्रीचर्स है इसके, वो एक कॉमन है। नॉक्टर्नल हाँ। तो वो नाइट क्रीचर है। ओके ओके ओके। तो फिर कॉकरोच क्यों नहीं रखा? नहीं सर, कॉकरोच में मजा नहीं आता। क्यों भाई, ऐसा कॉकरोच से हमें आपका बैठे रहना अच्छा लगता है, वो तो घूमता रहता है। अच्छा ठीक है, आपका लॉजिक। अभी उल्लू की आवाज में हंस सकते हो क्या? नहीं मैंने उल्लू की आवाज ही नहीं सुनी। क्या बात कर रहे हो यार, आपने एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी क्या? नहीं हॉरर तो कितने भी देखे, पर ये उल्लू वाली नहीं देखी, वो साउथ की तो हॉरर नहीं आई विल देखी। सजेस्ट यू फ्यू मूवीज यार। वो डराते वैसा ही है उल्लू से, और वो जंगल की आवाज और कॉकरोचेस और वो अपना क्या। हाँ ये करके दिखा दिया मोनल। वेरी गुड मोनल, वेरी गुड वेरी गुड। वो दरवाजा धीमे धीमे खुलता है ना, ये वो बात ये दरवाजा बात। जैसे खोलता हूँ वैसे ही निकालता है। और क्या है उसमें? धड़क और भी तो है कुछ? नहीं ये एक आता था मुझे। अच्छा बाकी सोच के बताओ। फिर वो आईने के सामने खड़े रहते हैं और पीछे भूतनी खड़े रहती है। हाँ करेक्ट। अब तो उल्लू भी बोलता है उसमें, आपने नेक्स्ट टाइम देखना। हाँ देख लेंगे सर। तो आईने में दिखता है उल्लू? ना आईने में उल्लू नहीं दिखता है। आईने में तो भूतनी दिखती है, वो खुद का मेकअप देख के डर जाती है वो वाली। वही था सर। ओके ओके गुड। सो कोई तो करो भाई। अच्छा भी किसी फीमेल के साथ में एनिमल लवर नहीं हो? हाँ किसी फीमेल के लिए चैलेंज है पार्टिसिपेंट के लिए। जो लड़कियां आपस में ऐसे करके हंसती हैं, कोई ऐसा हंस के दिखा सकता है? ओपन चैलेंज है ये। जनरली हम लोग मुंह पे हाथ रख के हंसते हैं, तो कोई हंस के। तुम्हें किसने बोला? हम लड़की को बोले भाई मोनल तुम लड़की हो क्या? सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो। मैं अचानक ट्राई से कर रहा था। अच्छा जेंडर चेंज हो गया, मुझे अचानक से लगा बिल्कुल से। नहीं लव तुम्हें आना है, हाथ रेस करो। लव अमंग स्टूडेंट्स, लव देसाई। मैं मोदी ज्वाइन हुआ, मोदी आया है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं मोदी दिख नहीं रहा है मुझे। मैम तब तक एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। जब तक फीमेल हमारी फैकल्टीज जो तैयार हुए, स्टाफ तैयार हुए, उसके लिए आई थिंक दिस यू शुड पार्टिसिपेट गिवन अ चांस। अगर आप कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में जाते हो, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? आप किसके साथ जाना चाहते हो?
व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? कौन सा जगह आपको बहुत एक्साइट करता है कि जगह मेरे को जाना चाहिए? वन से वो बोलते हैं ना, ट्राई बिफोर यू डाई। सो कौन सी जगह आप हेलो हेलो सर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा शायद लाइट यहाँ कट ऑफ हो गया था। जी। सो कोई भी शेयर कर सकता है कि व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन और आप किसके साथ जाना चाहते हो, क्या करोगे उधर? वेरी सिंपल, जिसमें हंसना भी नहीं पड़ेगा। वहां हम हंसेंगे। हाँ जी सर। एनीवन? नाम लेके बुलाना हम लोग नाम लेके ही बुलाते हैं फिर। हाँ सर, आप चूज कर लीजिए। हाँ, हम तो किसी को जानते नहीं है, मैं न्यूट्रल पर्सन। बल्कि अच्छा है, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, मैं है तो ना, जिसको पकड़ूंगी तो हम ही अल्फाबेटिकली ऐसा कुछ शुरू करते हैं। हाँ जी तो सर। धवल सर, आप दिख रहे सबसे ऊपर स्क्रीन पे, सबसे साइड में, बोलिए सर। सर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना चाहेंगे? दैट इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन। हाँ सर, क्योंकि ए बिल्डिंग में हम जब भी जाते हैं तो वहाँ कोई बैठा हुआ दिखता नहीं है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाए और हमारी माँ टीका करके हमको वो सीट पे बिठाए। वेरी इनोवेटिव। व्यास सर बैठे हुए यहाँ पे, जो अभी रजिस्ट्रार का पोर्टफोलियो भी संभाल रहे हैं। नहीं सर, पर कोई टाइम पे तो रिटायर तो हो गए ना कुछ एज के बाद, अभी हम तो यंग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धवल सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरी तरफ से भी आ रहा है कि आप गब्बर वाली हंसी हंस के बता सकते हैं क्या? गब्बर वाले वो तो नहीं पता। गब्बर सिंह का नाम नहीं सुना आपने सर? नहीं, वो तो मूवी भी देखा है, अमजद खान हाँ जी का सर। है। तो वो हंसता नहीं है सर, या उसका डायलॉग बोल दीजिए सर। हाँ सर। डायलॉग तो अभी कोई याद नहीं आ रहा है मैम। अरे सर, ये तो नहीं हो सकता सर, ये हम नहीं मान सकते सर, झूठ हम बोलते हैं सेल्स वाले, आप मत बोलिए सर। शोले का डायलॉग तो बच्चे बच्चे की जबान पे है सर, आप तो उस समय बच्चे रहे होंगे जब शोले फेमस थी। नहीं सर, तो हम बॉर्न नहीं हुआ था, 75 में आई थी, मेरा 89 में। अरे सर, हम तो रामचंद्र जी के टाइम पे बॉर्न नहीं हुए थे, तो मालूम है ना राम ने रावण को मारा। सर एक फेमस डायलॉग था, मतलब वो एक नहीं बोलते कितने आदमी थे। हाँ, वो एक तो नॉर्मली हर बार सबसे सुनने को मिलता है वो। तो स्टाइल से थोड़ा सा बताइए ना सर। स्टाइल से? हाँ जी सर। सर हमने कभी एक्टिंग किया नहीं है मैम। सर आज कर लीजिए, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं। कोई बात नहीं। कितने आदमी थे? सरदार 2। वो स्पीकर से आ रहा है ना वॉइस, इसलिए ठीक से नहीं आएगा। सरदार 2। हाँ, फिर आगे नहीं पता सर। वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ। सर पर वो मूवी कभी कभार ऐसे चैनल चेंज करते करते आ जाती है, तो कभी देख लेते हैं। मैं सर कम से कम 300 बार मूवी देखी है। ऐसा मुझे मूवियों का शौक नहीं है, मैं मूवी कम देखता हूँ। तो देखिए सर, तो सर रावण की हंसी तो हंस सकते हैं सर, रावण को तो सबको पता है। हाँ, वो ये मैम रामायण बहुत देखी है। हाँ, तो रावण की हंसी भी मतलब वो तो राक्षस टाइप हंसी होती है ना। देखिए सर, हंसी तो हंसी होती है, ये हमारी बुद्धि जज करती है, मन जज करता है, पर जब हम हंसते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है ना। तो लंग्स को पता नहीं है कि रावण की हंसी की किसकी हंसी है, लेकिन उसमें जो है फ्रेश, मतलब जो फ्लो ऑफ एयर जो है वो आता है, तो हंसना चाहिए जरूर। रावण से नम्रता जी मेरे को 2-3 प्रसंग याद आए, मैं क्विकली सुना देता हूँ आप लोगों को। एक रामलीला होती थी, वो सबने देखी होगी। रामलीला जो राम का, रामायण का जो पूरा चरित्र निभाते थे, वो शायद सबने देखी होगी, अभी भी आती है। रामायण तो सबने देखी है। तो रामलीला हर एक एरिया में होती थी, नॉर्थ में खासतौर पर रामलीला का बहुत, मतलब दशहरा का समाप्ति वहीं से होती थी। रामलीला आखिरी दिन रावण का वध होता था, तो ऐसा था। तो एक बार एक रामलीला में क्या हुआ कि पैसे का कुछ विवाद हो गया। अभी क्या है कि सारे जो पात्र होते हैं लोकली लिए जाते हैं, तो उनको पैसे दिए जाते हैं।
तो उसमें आखिरी दिन पैसों को लेकर विवाद हो गया। तो उनके पास पैसा था कम, जो रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स थे उनके पास पैसे कम थे। तो उन्होंने बोला किसको दिए जाएं? तो बोले काम करो, रामचंद्र जी को दे दो, वो तो प्रभु है, उनके पैर छू लो और पैसे दे दो। लक्ष्मण जी को दे दो। तो सारे सुरों को पैसे मिल गए, असुरों को पैसे नहीं दिए उन्होंने बोले आपको बाद में देंगे, वैसे भी आपका काम ही क्या, आप तो वैसे ही गाली खाते हो, तो आपको पैसे हम बाद में देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब अंतिम दिन आ गया, दशहरे वाला दिन। उस दिन रावण को वो था कि रामचंद्र जी रावण को मारेंगे। तो हो गया। तो अभी क्या हो गया कि ये वो आखिरी सीन चल रहा है कि रामचंद्र जी जो है उसको रावण को मार रहे हैं। लेकिन जब वो बाण मारे तो रावण हंस के खड़ा हो जाए। तो एक बाण मारा, दूसरा बाण मारा, अब विभीषण आके बोल दे कि आप एक काम करो, अमृत वो नाभि में मारने से ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। तो बोले ठीक है। वो फिर वो नाभि में मारे, फिर भी वो ऐसे वो झाड़ के फिर खड़ा हो जाए। फिर ऐसा कम से कम 15-20 मिनट चला। बेचारे रामचंद्र जी थक गए, वो ऐसे बाण मारे। वो विभीषण भी थक गया, बोले यार ये क्या है, ये तो मर ही नहीं रहे, तो ऐसे करके। तो उनको फिर कोने में ले गए कि भाई एक काम करो, हमसे लो पैसा। नहीं बोले पहले हमारा पैसा दो। तो रावण ने पूरा पैसा गिन के रखवाया जितने थे, और 10 रुपए ऊपर से भी लिए उसने। बोले साहब पूरा हमारा हिसाब करो। बोले अब आ जाओ, अब मार लो, आप कहीं पे भी बाण मारो, आप मारो ना मारो हम वैसे ही मर जाएंगे सर। तो रावण के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। हम बोलते हैं रावण ऐसा उपेक्षित पात्र है, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो रावण से हमें कुछ प्रसंग याद आए, हमने कहा आपके साथ शेयर करें सर। अब तो हंसी कोई हंस सकता है रावण की। सर हंसिए सर, 500 रुपए मिलेंगे सर, बताइए इस बार हंसने के पैसे मिलेंगे। नहीं, पर मैं वो ऐसा कभी टीवी में देखते हैं, कोई प्रोफेशनल एक्टर तो है नहीं कि कोई ऐसे, मतलब वो लोग तो मैडम जैसे अभी सर ने बोला कि मूवीज का है, तो अभी मैं रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने एक इंटरव्यू देख रहा है। उसने कीक में एक स्पेशल हंसी तो उसके लिए 2 महीना उसने वर्कशॉप किया था। अब वो तो एक प्रोफेशनल लोग होते हैं, हम लोग पढ़ाने का, तो अभी डेमो दो तो अभी बता दे कि चलो ऐसे ये टॉपिक है, ऑन दी स्पॉट कैसे एक्सप्लेन करना है। पर ये हंसी डायलॉग कुछ डिफरेंट थिंग हो जाएगी, पर करेंगे, ट्राई करेंगे। अब अपने यहाँ कल्चर एक्टिविटी होती है, तो कभी हमें भी मौका दीजिए पार्टिसिपेट का। सर तो आज ही करेंगे। का आज नगद कल उधार सर, आज ही का आज हंसना है तो बता दीजिए सर। नहीं अच्छा नहीं शायद नाम नोट किए जा रहे हैं सर आज। कोई बात नहीं। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, या आप कहाँ जाना चाहोगे, किसके साथ जाना चाहोगे? सर ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन तो नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कहीं भी दूर जाना चाहूंगा, और वो ही एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाएगा। जहां भी चले जाओ अपने पुराने दोस्तों के साथ। सर फिलोसफी है थोड़ी, बट सीरियसली बताइए, कोई जगह तो होगी सर। नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है, बट अगर कहीं बाहर जाना चाहता हूँ तो बस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। कोई तो अभी बता दीजिए सर, कोई भी जगह। ऐसा कोई जगह नहीं है। अरे सर मैं तो बहुत जगह जाना है, मेरा पैसा होगा तो लैंड है, नो मैंस लैंड है सर। अच्छा, एक टापू पे जाएंगे सर, फोन नहीं हो, ऐसा टावर नहीं हो। हाँ। ऐसे कोई जगह जाएंगे जहाँ पे फोन का डिस्टरबेंस नहीं आए। चंद्रा मैडम बताना चाहेंगी, वो कुछ सोच रही है, बताइए मैडम। सर आपको खेड़ूत आंदोलन में दिल्ली जाना चाहिए था। मेरे को? हाँ सर। तो तुमको क्या लग रहा है नेटवर्क काट दिया था सरकार ने। तो तुमको क्या लग रहा है ऐसे ही चल रहे हो? वहाँ का नेटवर्क काट दिया था सरकार ने 1 महीना, इसीलिए। नहीं, वहाँ बहुत कुछ काटना चाहिए, नेटवर्क ही नहीं। हाँ चंद्रा प्लीज। मैम वैसे तो ड्रीम डेस्टिनेशंस बहुत है व्हिच आई कैन नॉट रिवील नाउ, पर एक ऐसी चीज है जो इट कुडंट गेट फुलफिल्ड, वो है गोवा का ट्रिप। पिछले 6 साल से बन रहा है और कैंसिल हो ही जा रहा है। बने मतलब फ्रेंड्स हम सारे लोग साथ में सोचते हैं, ग्रुप भी बनाते हैं, फाइनलाइज हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है। और पिछले 2 साल से तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। So Goa trip. With whom? With my friends. Okay. Any specific friend? No. Achha. Engineering friends. Engineering friends. Okay. What you will do for 3 days? What is the first thing you'll do? I would like to switch off my phone. No, office calls. And because फिर फोटो कैसे खींचेंगे? स्विच ऑफ कर दोगे तो फोटो कैसे खींचेंगे? मैम उसके स्विच ऑफ ऐसे एरोप्लेन मोड डिजिटल कैम भी है। एरोप्लेन मोड मैम हम लोग करते हैं यूज। There's a mode which is known as aeroplane mode. Network 0.
Yes, so चलो कैमरा विल बी ऑन। वहाँ पे 3 दिन के लिए घूमने गए तो कैमरा तो होगा ना मैम? यस यस। हाँ, ये तो मोनल की एक्सपर्ट कमेंट्री आई रही है। हाँ, कंटिन्यू चंद्रा मैडम। That's it मैम, बस गोवा का ट्रिप Okay. हो जाएगा पैंडेमिक के बाद एटलीस्ट। गुड। अंकित जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे सर, किसके साथ जाना चाहेंगे और क्या करेंगे उधर? सर अनम्यूट करिए सर, अंकित सर। अंकित सर अनम्यूट करिए पहले। हाँ कर रहे हैं, वो विचार मंथन चल रहा है थोड़ा। हाँ बोलिए सर, कहाँ जाना चाहेंगे, किसके साथ जाना चाहेंगे, क्या करेंगे 3 दिन के लिए? सर इनफैक्ट फैमिली के साथ कहीं घूमने, कहीं पे भी ठंडी जगह। सर ठंडी जगह रेफ्रिजरेटर तो नहीं ना सर? हाँ सर। रेफ्रिजरेटर तो नहीं ना सर? नहीं नहीं रेफ्रिजरेटर नहीं सर। तो जगह बताइए ना सर। रेफ्रिजरेटर में नहीं जाना सर। इनफैक्ट कश्मीर हो गया या मनाली, शिमला, इस टाइप की जगह। एंड इनफैक्ट मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो उधर पे मिलेगी एंड नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी जी। या तो आप साउथ में केरला में चले जाइए। यस। इंडिया के करीब 10 स्टेट मूव कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ, कुछ और बाकी है अभी। जी जी सर। कोई ऐसी एक जगह होगी कि यहाँ लगे यहाँ तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, पहली फुर्सत में जाऊंगा, लेट इट कोविड गेट ओवर? इसमें सर वैकेशन के अलावा इसमें सर एक ही है जहाँ घर, ओके, अपने होम टाउन। हाँ, कहाँ है आपका घर सर? क्योंकि काफी टाइम हो गया है सर गए हुए, तो वहां पे जाना चाहूंगा। आपका घर कहाँ है सर? सर गोरखपुर। अरे क्या बात है सर, तो आप बोलिए काठमांडू जाएंगे, सुनौली जाएंगे, नौतनवा जाएंगे सर? सर मेरे घर पे मुझे छोड़ के बाकी सभी जा चुके हैं, मैं नहीं गया हूँ केवल। अरे सर हम लोग जाते हैं इधर से सर उधर काठमांडू घूमने के लिए। चलेंगे सर, प्लान करेंगे तो चलेंगे, डेफिनेट चलेंगे सर। मतलब मैं आपका ड्रीम पर्सन तो नहीं हूँ जिसके साथ आप जाना चाहेंगे, तो वो भी कौन है आपके साथ? सर ऐसा नहीं है कि ड्रीम पर्सन, पूरी फैमिली जाएगी, फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हूँ तो वी आर लाइक फैमिली, तो हम सब एक साथ जा सकते हैं सर। जी। कौन सी पहली एक्टिविटी आप करना चाहेंगे वो उस जगह पे जाके? कोई एक मन में होगा कि मैं बॉन फायर करूंगा या गिटार बजाऊंगा या मैं गाना गाऊंगा या डांस करूंगा या मैं साइट सीइंग करूंगा? साइट सीइंग सर, फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ। तो आप फोटोग्राफी करना चाहेंगे? हाँ सर, पहले करता था, बट अनफॉर्चुनेटली घर पे एक बार थेफ्ट हुई तो कैमरा मेरा चला गया, उसके बाद से आज तक खरीदा नहीं है। तो फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है, इवन फोटोग्राफी में करता था। अभी 4-5 साल से स्टॉप है, बंद है। अच्छा, तो शौक मत मारिए सर, फोन में ट्राई कीजिए सर। अभी काफी इधर उधर भागदौड़ चल रही थी लाइफ में, तो अभी क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी मिली है, तो अभी एक खरीदूंगा कैमरा सर। नहीं, आप मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हैं सर। मोबाइल से सर उतना पसंद नहीं आता। सेल्फी सर, सेल्फी? नहीं सर, एक नया फोटोग्राफी ट्रेंड चला है। हाँ सर, मैं अपनी फोटो नहीं लेता सर, इवन सेल्फी है, ये सब चीजें पसंद नहीं है। अच्छा, साइट सीइंग कर रहे हैं तो जस्ट सीइंग सर, कोई अगर देख रहा है उसकी फोटो क्लिक कर सकता हूँ, बट खुद नहीं करता। अरे सर यहाँ सेल्फी में पीएचडी हैं लोग, कई लोग तो यहाँ कई लोग सेल्फी में पीएचडी किए हैं सर। सर वो आदत मेरे अंदर नहीं है। सर मैं सीक्रेट खोल रही हूँ, उसमें चंद्रा मैडम नंबर 1 है, अभी लेके गई है वो। कई लोग लेते हैं, बट मेरी आदत एकदम नहीं है सर सेल्फी वाली। अच्छा सर, मैं आज तक पाउटिंग सीख नहीं पाया। पाउटिंग कैसे करते हो? मेरे को उसका क्लास अटेंड करना है 2 दिन का, कि पाउटिंग कैसे करते हैं। कॉपी कुछ, हाँ, मुंह बनाते सर, वो हमको भी नहीं मालूम है सर, वो ऐसा कुछ। मैडम थोड़ा सा आप बता देंगे, थोड़ा सा पाउटिंग? मैम मैं पिक्चर्स लेती हूँ बट पाउटिंग नहीं करती हूँ। तो फिर नेहा मैडम बताएंगी। अभी कोई राज नहीं खोलेगा कोई। नेहा मैडम थोड़ा सा बता दीजिए ना। नहीं, आता ही नहीं मैम, आता ही नहीं। मेरे को उसका क्रैश कोर्स करना है, मेरे को क्रैश कोर्स करना है 2 दिन का उसका। माय वाइफ डज इट। कॉलेज खोलने दो ना सर, कॉलेज खोल दो, सब कुछ सिखा देंगे। अरे ठीक है। 5 साल साथ में रहेंगे, कुछ तो सीख ही जाएंगे। पक्का 5 साल क्यों रहोगे तुम? 5 साल क्यों रहोगे? बीएससी तो 3 साल का है। मास्टर भी नहीं करेंगे, एमएससी का पूरी प्लानिंग है। मुंह पे बेइज्जती।
ये देखिए हमारे जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री वालों का बहुत केमिकल नोचा है सर। बहुत आगे की सोच लिया उसने। अभी कई लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, जैसे लालू अभी मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, कोई लोग सोच रहे हैं कि अगर आज हम होते तो हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पास तो कर ही लेते। जिस तरह से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो कई लोग वो भी सोच रहे हैं कि काश आज हम किए होते तो 10 और 12 तो पढ़ ही लेते कम से कम, उतना तो पक्का था। एनीवेज, सो कुछ और लोग स्क्रीन में हमको दिख रहे हैं। सो ज्योति मैम। हाँ ज्योति मैडम से मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरा भी सर क्वेश्चन है, थोड़ा दुल्हन वाली आप हंसी बता दीजिए क्योंकि आपकी शादी हाल ही में हुई है, तो आप थोड़ा सा दुल्हन वाली हंसी हमें बता दीजिए मैडम। सर मैम एक्चुअली दुल्हन वाली हंसी इतनी ज्यादा लाउड नहीं होती है, वो बस स्माइल ही करती है, जो बोला हाँ, बिना आवाज की होती है। हाँ बिना आवाज की होती है, बिना आवाज वाली सिर्फ स्माइल होती है। हाँ जी, थोड़ा वही करके बता दीजिए ना मैडम। यस मैम। हाँ जी, उनकी शादी हाल ही में हुई है, मतलब ज्यादा नहीं समय हुआ, 1 साल पूरा नहीं हुआ है। हो गया मैडम 1 साल पूरा? हाँ मैम 1 साल हो गया। हाँ तो जो दुल्हन जो मुस्कुराती है बिना आवाज के, बस मैं ऐसे ही स्माइल करती थी। जो बुलाए वो स्माइल ही करना रहता है। तो आप कहाँ घूमने जाना चाहेंगी? सर घूमने का तो एक्चुअली हम लोगों ने प्लान भी किया था, जो चंदा मैम बोल रहे थे हम लोगों ने प्लान भी किया था, बट लॉकडाउन हो गया तो अभी पोस्टपोन्ड है। अब लॉकडाउन कंप्लीट हो उसके बाद से फिर हम लोग जाएंगे। गोवा ही आपका भी प्लान है? गर्ल्स ट्रिप एक प्लान की थी सर हम लोगों ने इंटरनली। ओके। तो अभी अगर कंप्लीट हो ये सब, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो, उसके बाद से फिर हम लोगों ने प्लान किया है। आप गोवा ही जाना चाहेंगी? गोवा ही? हाँ सर, चंदा मैम ने अभी डिस्क्लोज किया ना, वो सेम ही प्लान। यू आर द गैंग मेंबर? यस सर, गैंग मेंबर। बात बताओ सर आप लोग को, जिस दिन हमने प्लान किया था ना कि हम ट्रिप जाएंगे एंड ऑल, व्हाट हैपेंड कि अगले दिन अंकिता मैम, मतलब नॉट अगले दिन, विद इन फ्यू डेज अंकिता मैम बीमार हो गए, उसके तुरंत फिर क्या बोलते हैं ज्योति मैम बीमार हो गए, फिर बाद में मुझे कोरोना आ गया। इट्स लाइक व्हाट, हमने सोचा कि हम जाएंगे बट ऐसे हो गया। इट इज अ पॉजिटिव, नाउ यू आर फ्री टू गो। जो निपटाना था निपटा दिया। पर अंकिता मैम तो बाकी है। अभी अंकिता मैडम बाकी है, उनको कोरोना नहीं हुआ है। So, आप लोग साथ में जाना चाहेंगे गोवा? यस सर। राइट, तो पहला आपका ड्रीम डेस्टिनेशन गोवा है, करेक्ट। तब तक के लिए बता देता हूँ, कभी कभी यूट्यूब देखिए उसमें गोवा के ऊपर, तो आपको पता रहेगा कि जाते ही सबसे पहले क्या करना है। नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा मैं बहुत बार गया हूँ, मैं एज ए सेल्समैन जाता था उधर पे, बहुत अच्छी जगह है। हालांकि अगर आप गोवा नहीं जा पा रहे, दिल छोटा मत कीजिए, आप दीव चले जाइए। दीव इज इक्वली ब्यूटीफुल। मैं दीव का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, बट इट इज इक्वली ब्यूटीफुल एंड यू नो मोर क्लीनर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट। वो न्यूसेंस नहीं है उधर पे। अगर आप उधर जाके आ चुके हैं सर दीव में? मैं, अच्छा आप जा के आ चुके हैं, तो शायद आपको गोवा उतना 3-4 बार का ट्रिप हो गया है, आपको गोवा उतना अच्छा नहीं लगेगा फिर अगर दीव आप गए हैं तो। सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, तो क्योंकि गोवा नाम बहुत ज्यादा है और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बिल्कुल जाइए, राइट, आप एंजॉय कीजिए उधर पे, लेकिन दीव इज मोर ब्यूटीफुल टू मी एटलीस्ट। सर गैंग अच्छा होना चाहिए, गैंग अच्छा हो तो जगह अच्छी हो जाती है। ये बात आपने वही डायलॉग मारा जो मेरे बॉस मारा करते थे। हमको एक बड़ी ही वाहियात जगह ले गए घुमाने के लिए फैमिली ट्रिप पे, और वहां पे हम लोग बैठे बुराई कर रहे थे, ये कहाँ लेके आ गए, पूरा दिन खराब कर दिया। सब लोग मतलब धो धो के बोल रहे थे और पीछे खड़े होके सुन रहे थे कि धीरे से बोलते हैं, अगर कंपनी अच्छी हो तो हर जगह अच्छी होती। तो हमने कहे प्रभु, तो आपने आज वही फीडबैक हमको वापस कर दिया, धन्यवाद आपका। और कोई शेयर करना चाहेगा? नेहा मैडम आप कहाँ जाना चाहेंगे घूमने? मैं गोवा तो अभी घूम के आई मार्च में, लास्ट मार्च। अभी लेट्स कम अहेड ऑफ गोवा। गोवा इज नॉट द बेंचमार्क। और कहीं भी जाना चाहेंगे? डेस्टिनेशन व्हिच आई ड्रीम फॉर इज लाइक पेरिस। Eiffel Tower is my dream. Oh. To see Eiffel Tower and click a picture there. Okay. That is my dream. So क्या करेंगी वहां पे? एक फोटो अपना सेल्फी लेंगे आप? हाँ सर, सबसे पहले सेल्फी जाते हैं। तो आप पहले पाउटिंग का क्रैश कोर्स कर लीजिए। हाँ, वो करना, चंदा मैम से क्लास लूंगी। So sorry मैम, मुझे नहीं आता। हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ है धधुक मोनल, वो बोलता है हम ट्रेनिंग दे देंगे। गुड गुड। सो पेरिस आप जाना चाहते हैं, उधर करना चाहते, वेरी गुड। तो पॉली मैम, पॉलोमी मैम, वेयर यू वांट टू गो एंड विद whom and what you will do first?
Okay. Right now, I want to go to my hometown. Okay. What is your hometown, ma'am? Yeah, Kolkata. Oh, wow. So, City of joy. there I'm. Yes. Yeah. So there I'm going on Monday. So my first dream destination is coming very close. Okay. And lifetime dream destination, I want to see the pyramids. Not in pictures, not in YouTube, but like live. So I want to go there with my husband. Okay. Your husband is also Bengali? Yes. Okay. So no surprise, ma'am. No racist comment, but as predicted and as anticipated, you have a very good interest for this historical places, correct? Yes, somewhat, yes. No wonder that all Bengalis have been a fantastic historians in India. Historians, I don't know, but new architecture and new place. Even new historians, people. ma'am, abhi tak life mein best historians have been either from Bengal or Maharashtra. That's what I know because I have a little interest in history. Okay. So आप अब देख हो सकता है शायद वही एक है आपके अंदर जो इंटरेस्ट दिख रहा है तो आप पिरामिड्स देखना चाहते हैं. तो मेरा स्कूल से ड्रीम है but it was not possible so far. लेकिन विश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो एक बार पिरामिड देखने जाना है, एक बार इजराइल घूमने जाना है. ये दो जगह मैं देखना चाहती हूँ. इजराइल क्यों मैम? इजराइल इज द बर्थ प्लेस ऑफ टू वेरी वेल नोन रिलीजियंस. तो एक ही जगह में मेरे फ्रेंड गए थे, उन्होंने बताया कि एक ही जगह एक वॉल है, एक साइड से क्रिश्चियनिटी, एक साइड से लाइक इस्लाम एंड जुडाइज्म वगैरह बहुत कुछ का बर्थ प्लेस है इजराइल. एंड आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ ब्लू मॉस्क एंड ऑल, और उनका खाना भी बहुत अच्छा है. तो मुझे थोड़ा मन है कि कभी पैसा इकट्ठा हो, कोरोना टाइप का कुछ ना रहे तो मैं एक बार इजराइल घूमने जाऊं. सुपर मैम. वैसे इजराइल इज फ्री ऑफ कोरोना. अगर आपको है तो इजराइल इज अ कंट्री सेफेस्ट प्लेस इन राइट नाउ. अभी कोरोना ऑलमोस्ट फ्री है. ठीक है, उनका थोड़ा इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, वो अलग बात है, बट इट इज फ्री फ्रॉम दिस थिंग. आप कभी भी प्लान कर सकते हैं. मेरा भी एक वो है, आई वांट टू सी देयर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. Yes, they are very small country. Yes. And they are equipped with everything. Yes, ma'am. Being a very small country, they have the latest technologies. Leader in the this vaccine technology in the world. Yes. So thank you so much for sharing your experience. मेरा एक क्वेश्चन है पॉली मैडम के साथ कि आपके यहाँ तो छोटा बाबा है, आपका बेबी बॉय है आपका, ठीक है ना? उसकी बच्चों की मुस्कुराहट और बच्चों की खिलखिलाहट बहुत प्यारी होती है. आई होप यू एग्री विद दिस. तो ऐसे बच्चे की खिलखिलाहट वाली आप हंस सकते हैं? मेरा बेटा कभी लाइक वो जब छोटा था ना, उसने कभी दांत दिखा के नहीं हंसा. He used to when he grew up he started showing his teeth. But I will not go into his smile, but I will try to mock generally children का smile. बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं. उनके आईज और स्माइल से तो सब भूल जाते हैं, पूरा दुनिया भूल जाते हैं. बिल्कुल सच्ची बात है. I don't know. I'm not very good. But there will be something like this. Good, madam. Very good. You will get prize definitely. I will just finish this and come to you, Namrata ma'am. Yes, sure. बिल्कुल कैश प्राइस पड़ा है यहाँ पे. कोई लेने वाला नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल आइए आप. Superb, superb. Mr. Prasenjit. Yes, sir. सीरियस वाले को भी मिल जाएगा 501 का. प्रदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. Sorry, here there was a power cut. Extremely sorry. जी जी. Yeah. आप प्रसन्न जी, आप कहाँ जाना चाहेंगे? किसके साथ? क्या करेंगे? एक जगह है जो मैं अभी तक नहीं गया हुआ, स्विट्जरलैंड. मैं वहाँ पे जाना चाहूँ. किसके साथ? यूरोप. फैमिली के साथ. ओके. ऐसा क्यों सर? मजबूरी में क्यों बोल रहे? बता दीजिए, दिल में कुछ ख्वाहिश है? नहीं, वैसे कोई बात नहीं सर. फैमिली के साथ ऐसे भी टाइम स्पेंड कम ही होता है, तो क्या करेंगे सर उधर पे?
उस सर वहाँ का नेचुरल ब्यूटी कुछ और ही लेवल का है, जहाँ तक मैंने सुना, मेरा भाई भी गया था और जहाँ तक मैंने फोटोज में देखा है, तो मैं उसी को एंजॉय करना चाहूंगा। और वो इतना सा साफ सुथरा देश है, और इतने वहाँ पे लोग लॉ एंड ऑर्डर और इतना सब फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे रहना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो इसीलिए, और एक जगह सर जहाँ पे मैं गया हूँ वो है जापान में, क्योतो में। वहाँ पे कुछ मैंने एक जगह देखा, वहाँ पे तो पहाड़ से घिरे हुए होते हैं, और वहाँ पे बहुत लोग सिर्फ पहाड़ों में रहते हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल, वहाँ पे रहना, वहाँ पे एक्सपीरियंस। तो मेरा कभी मन जा, तो वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पर अगर वहाँ पे रह नेक्स्ट जापान में जो लोग रहते हैं ना, वो भी रिटायरमेंट के बाद जापान में नहीं रह पाते कई लोग। दे मूव टू थाईलैंड, फिलीपींस, because it's so costly over there. But वहाँ पे अगर रह पाऊँ, that there are some toy trains which connect the mountains to the main city. It is beautiful living in the mountains. So yeah, वो भी एक सर आपका नाम प्रसन्नजीत है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रसन्न ही रहते होंगे सर? नहीं, मेरा नाम कैरेक्टर को देख के नहीं रखा गया था, वो जस्ट रख दिया था। बंगाली में एक हीरो है, वो बहुत पॉपुलर है, उसी के नाम पे रखा है। तो मतलब आप खुश नहीं रहना चाहते आपके नाम के? नहीं, खुश हूँ मैं, वो बात नहीं है, पर ऐसा नहीं कि आप जैसा कह सकते। जी सर। एक जगह है स्विट्जरलैंड में, लॉथरबर्ग करके। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड। आप कभी देखिएगा यूट्यूब में, अगर चांस लगे तो सर जरूर जाइएगा, और वहां जाइएगा तो हमारे लिए चॉकलेट लेके आइएगा सर। यस सर, मेरी दुआ है कि आप जरूर जाएंगे सर। पैसे की बात नहीं है, अगर आपने सोच लिया तो आप जरूर जाएंगे सर। यस सर, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। स्विट्जरलैंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। हाँ सर, राइट। एक समय होता तो लोग बताते थे, वो जाते थे तो वहां से टूथपेस्ट भी होटल का सबके सामने रखते थे कि हम देखो वहां घूम के आए। अब वो सब जमाने चले गए, अब तो लोग बहुत जगह जाके बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सर। गुड सर। हमारे साथ में चेतन भवसर सर जुड़े हुए हैं। यस चेतन भवसर सर, आप सुन रहे हो तो हमें एक ऐसी हंसी बताइए जो बाला बाला करके हंसता है, वैसा आप बता सकते हैं चेतन भवसर सर? मेरा अभी तक प्राइस जो है सबसे बेस्ट हंसी वाला पड़ा हुआ है अभी 251 का। चेतन सर, आर यू देयर? ओके। हार्दिक सर, एचआर हमारे मैनेजर हैं, हार्दिक सर। सर आप किस प्रकार की हंसी हमें हंसा के बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर पहले अपने आप। सर आप नहीं हंसेंगे तो आपके स्टाफ कैसे हंसेगा सर? सारे लोग हंसने चाहिए और बिल्कुल हंसने चाहिए, मुस्कुराने चाहिए हमेशा जी। तो जो 4 कंपोनेंट्स बताए हैं प्रदीप सिंह जी ने जी, प्लीज होना बहुत आवश्यक है उसमें। जी। तो हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जी सर, बहुत बढ़िया चीज है। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, मैं पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था, बड़ा मुझे आनंद आया इसके अंदर सभी लोगों के ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में। तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा था प्रदीप सर ने कि क्या है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो प्रदीप सर को मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेल्स हैं इसके अंदर, तो अभी टॉपिक काफी गोवा पे चला था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे में जो सुन रहा था कॉन्वर्सेशन में, उसमें गोवा पे एम्फसाइज ज्यादा हो रहा था और फिर जा रहा था स्विट्जरलैंड की ओर। तो मेरा मानना है जितने भी मेल्स हैं बैचलर लाइफ में मोस्टली ने गोवा देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कि गोवा नहीं देखा होगा। तो आई थिंक कि गोवा इज अ काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन इन इंडिया। चाहे आप लीव ले लीजिए, चाहे कुछ भी कंपेयर कर लीजिए, मेल सिंगल बैचलर लाइफ में मेल स्पेशली कोई गोवा नहीं गोया होगा ऐसा बोलेंगे तो एक बार कन्विंस नहीं होता है। क्या कहते हैं बड़ी साहब जी आप? समझ गए सर सब लोग। अब आप सीक्रेट मत खोलिए सर। अब आप भेद खोल रहे हैं। सर मैं जो हंसी की मैं ढूंढ रही थी जिसको मैं इनाम दूं, पौलमी मैडम का तो है चांस, दादुक मोनल का भी है, पर अभी तक कोई हंसा नहीं है सर। व्यास सर हंस के दिखा देंगे सर। व्यास सर, हम 12:30 की ओर बढ़ रहे हैं, तो व्यास सर हमें हंसाएंगे। करशन भाई आप हंस के बताएंगे वो जो आपके गांव वाली हंसी होती है। आपने एक बार आप फोक सॉन्ग आपने सुनाया था, ऐसे कोई फोक हंसी भी होती है तो बताएंगे सर। करशन भाई।
अनम्यूट करिए सर, करशन भाई अनम्यूट करिए। आपने एक बहुत अच्छा फोक सॉन्ग हमें सुनाया था, ऐसी फोक हंसी भी होती है क्या? नहीं नहीं मैडम, ऐसी हंसी तो नहीं होती, सॉन्ग होते हैं। सर ये तो आप अजीब बात बता रहे हैं कि मतलब फोक लोग जो है गाना गाते हैं गांव वाले, लेकिन हंसते नहीं है, ऐसा? हंसते हैं मैडम, को उसकी कोई अलग कैटेगरी नहीं रहती, जो सब लोग हंसते हैं वैसे ही हंसते हैं। सर मदन कटारा इतनी अलग अलग प्रकार की हंसी बताता है, मैं वही आश्चर्य कर रही हूँ कि मुझे एक वीडियो चालू करना था इनका मदन कटारा का, वो अलग अलग प्रकार की हंसी हंसता है कि इवन आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया और बहुत भारी भरकम आया तो भी वो देख के हंसता है। तो बच्चे भी हंस सकते हैं। मोनल, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, हंस के दिखा सकते हो? किसी एक में 80 लग गई? ना मैम, 7.82। 7.82। अच्छा तो भाई तो अच्छी आ गई। नमिता जी हम बताते हैं कॉर्पोरेट हंसी क्या होती है? हाँ सर बिल्कुल बताइए। कॉर्पोरेट हंसी, बॉस ने कुछ भी बोला बॉस ने अगर बोला तो एक एम्प्लॉय चुपचाप खड़ा है, सब हंस रहे हैं सर क्या बात, अरे सर वाह 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 बहुत बढ़िया सर कितना अच्छा। एक एम्प्लॉय वो नहीं हंस रहा, चुपचाप बैठा है। उसको पूछा भाई आप क्यों नहीं हंस रहे हो? बोला सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। बढ़िया। व्यास सर के पास तो अब हम बॉस आते हंसे हैं, तो हंसो, एक कॉर्पोरेट हंसी हमारे है। डीन सर के पास आते हैं, वो हमेशा हम लोगों को हंसाते हैं लेकिन खुद नहीं हंसते, वो खाली ऐसे मुस्कुरा के, जो बिना आवाज वाली हंसी होती है उनकी वो होती है। ग्रेट कॉमेडियन, ये तो ग्रेट यू सेंस ऑफ ह्यूमर, जो खुद नहीं हंसे तो। बस आपने बोल दिया, आप क्या बोले। देखिए अभी भी हंस रहे हैं सर, लेकिन बिना आवाज के। क्या कर रहे हो, साइलेंसर लगाया हुआ है। भारती मैडम खुल के हंसती हैं। भारती मैडम, अरे ना भाई ना, भारती मैडम बोलेंगे। भारती मैडम आज बिजी है। मैडम बिजी थी, मैं अभी ही आई स्टार्टेड जॉइन, आई जस्ट जॉइंड। लेकिन आप मतलब आई हैड जॉइंड बट आई स्टार्टेड लिसनिंग राइट नाउ। हाँ, एक के बाद एक स्टूडेंट्स चालू ही थे मेरे पास। जी मैडम, आपकी मुस्कुराहट और आपकी हंसी बिल्कुल जो है एक शर्मा के हंसने वाली हंसी होती है, मैंने ऑब्जर्व किया है। आप चेहरे पे हाथ रख के मुस्कुराते के हंसती है मैडम। तो आज हमें वो डेमो दे देंगे मैडम, प्राइज है उसमें। यू नो विजो सर ने एक बार मुझे कहा था, एक मैसेज लिखा था व्हेन द वेबिनार वाज गोइंग ऑन एंड आई वाज स्पीकिंग, मैडम अपने मुंह से आप हाथ ले लीजिए, आई डिडंट सी हिज मैसेज। हो गया जी मैडम। सो अभी तक मैंने अभी कोई एकदम सीरियस आदमी को भी नहीं देखा जिसको 500 रुपए का प्राइज मिले। मैंने बोला था जो सबसे सीरियस होगा, ये भी चैलेंज अभी ओपन है। नम्रता जी मैं आपको एक अपना एक मेमोरी सुनाता हूँ, आई थिंक बिफोर वी क्लोज। डोंट टेक एज ए ऑफेंस, मतलब वी ऑल आर टीचर्स, आई एम आल्सो अ टीचर इन माय सेटअप। सो हुआ क्या कि व्हेन वी वर इन क्लास 10th, हमारा जो स्कूल था वो सिटी से काफी बाहर था। हम लोग साइकिल चला के जाते थे, तो हमने आपको बताया साइकिल खो गई थी एक बार, तो हम लोग साइकिल चला के जाते थे। 12-13 किलोमीटर स्कूल था, एकदम सिटी के बाहर था। तो 12-13 किलोमीटर स्कूल चला के जाना और आना थकान हो जाती थी भाई उस समय। तो क्या हुआ कि एक बार हम लोग स्कूल पहुंचे साइकिल चला के, और वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ कि बिकॉज समवन एक्सपायर्ड, कोई टीचर के मदर एक्सपायर हो गई थी, तो आज छुट्टी है। तो नोटिस बोर्ड में लगा हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा दुख भी हुआ, खुशी भी हुई। दुख मतलब टीचर थे, तो खुशी किस बात की, चलो छुट्टी हो गई। एक दुख ये, इतनी दूर साइकिल चला के वापस जाना पड़ेगा अभी। तो ऐसा मिक्स फीलिंग करके हम लोग वापस घर पहुंच गए। नेक्स्ट डे आए, अभी नेक्स्ट डे आए तो एक टीचर थे, उनकी फादर उनके एक्सपायर हो गए। तो फिर से नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि आज ऐसा ऐसा है और उसकी वजह से छुट्टी है। तो फिर से वो मिक्स फीलिंग आया, दुख भी खुशी भी सब कुछ साथ में करते हुए वापस घर पहुंच गए। आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रू इंसिडेंस है। थर्ड डे सुबह एक लड़का फोन कर रहा है स्कूल में, टीचर वो अपने ऑफिस में, सर आज आना है क्या?
वो पूछ रहा है सर, बोले क्यों? बोला सर इतनी दूर साइकिल चला के आते हैं, फिर आप नोटिस पे लिखा देते हो तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता, वापस आना पड़ता है। आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट बाद में आ जाएंगे स्कूल। हमने बहुत कोशिश की, एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है किसी को हंसाना। और जो अभिनंदन सर ने बताया कि डोज, जिसको आपने अब्रिवेटेड रूप दिया, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन और ये सारे आते हैं, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। हाँ, तो ये बहुत एक चैलेंज है, बट आई एम श्योर कि कोई एक थोड़ी मॉडरेट अमाउंट में तो थोड़ा सा रिलीज हुआ होंगे हार्मोन्स। आप चेक करा लो एंटीबॉडीज आपका आज, हाँ जी, बढ़ गया होगा। अभी थोड़े और करेंगे, यादव सर आ रहे हैं। अच्छा, यादव सर आ रहे हैं। तो सर ने लिंक जोड़ दिया है। और नहीं, वैसे भी सर दिन में मुझे एक आध बार मेरा डोपामाइन लेवल अच्छा कर देते हैं। मैंने कहा सर आप आइए, आपके बगैर ये सेशन अधूरा है। अच्छा। नहीं, सर ने कल वैसे भी, यादव सर ने कल हम सबके जो है डोपामाइन के लेवल तो बढ़ा दिए सर, कि जैसे ही वेकेशन का डिक्लेरेशन हुआ है तो हम सबके थोड़े ऊपर तो चले ही गए लेवल्स। उसके अलावा सर थोड़ा, मैंने कहा सर आप थोड़ी वाराणसी की गलियां भी घुमा दीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। इस बीच में एक तड़का लगा देते कि आज सुबह ही मैं देख रही थी, तो मुझे ज्यादा हंसी तो नहीं आई, लेकिन मुस्कुराहट जरूर मेरे चेहरे पे आ गई कि एक व्यक्ति जो है सोया हुआ था बेड पे, तो उसको मच्छर बहुत तंग कर रहा था। एक ही मच्छर इतना तंग किया कि आखिर वो बेड के नीचे जाके सो गया कि भाई वहां सोऊंगा तो यहाँ मच्छर नहीं आएगा। तो इतने में जुगनू आया एक, तो इसने बोला तुम टॉर्च लाइट लेके तुम नीचे भी आ गए? मच्छर को बोलता है कि तुम टॉर्च लाइट लेके नीचे भी आ गए जुगनू को। तो मुझे हल्का सा गुनगुनाहट में जरूर हुई कि भाई कितने लोग कोशिश करते हैं सबको मुस्कुराने के लिए, दिलवाने के लिए, लेकिन लोग हैं कि इतना उनका मन बुद्धि आड़े आ जाता है कि वो बोलते हैं हम मुस्कुराएंगे ही नहीं। तो वो एक चैलेंज चल रहा है, रस्साकशी चल रही है कि आप मुस्कुराइए के लिए बोल दीजिए पर हम नहीं मुस्कुराएंगे। तो कोई चैलेंज लेने के तैयार है? 2 मिनट तक नहीं मुस्कुराएगा, एकदम सीरियस लुक लिख देगा, 501 का इनाम है। ऐसा कोई मोनल? अंकित सर जीत गए। अंकित सर सर अंकित सर, ये आपको मोनल ने बोल रहा है कि आप जीत गए हैं। अंकित सर आप यही हैं? अभी तक यही थे सर। मैं अभी भी तो यही दिख ही रहे मुझे। हाँ, मैं वो देख रहा था, वो सर ने भी एक जोक मारा, सबने जोक मारा, तो वो नहीं हंसे। अंकित सर, मोनल आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, बाद में हंस देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, हम लोग वेट कर रहे हैं यादव सर को ज्वाइन होने के लिए। अभिनंदन सर, आप भी कुछ बताइए हमें। आपने साइंटिफिकली इतना एक्सप्लेन कर दिया। साइंटिफिकली एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि अभी धुरंधर साइंटिस्ट लोग तो आए नहीं बायोलॉजी के। भारती मैडम की टीम से आने चाहिए, विजय सिंह सर हैं, पौलोमी मैडम थोड़ा आ गई हैं, थोड़ा बायोलॉजी को जानती है। हाँ, केमिस्ट्री भी थोड़ी। मेरा तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से नाता ही नहीं था, 12th मार्क्स आए थे, लेकिन हमारे टाइम पे क्या था, पीसीएमबी गिना जाता था, अमित सर को था, तो बायोलॉजी की वजह से मेरा रैंकिंग डाउन हो गया था। Okay. Rank was very good, and ultimately you came to pharma industry, फिर हॉस्पिटल में जाना, तो अभी बायोलॉजी आता है, पीछा नहीं छोड़ रहा है। एंड देन न्यूरो लीडरशिप के अंदर भी आ ही रहा है, वरना ये पहले पता नहीं था कि ये सारे इतने हार्मोन्स आते हैं जो आके दिन में हमें पूरा हिला के जाते हैं। डोज के लिए डोज। सर, ये भी हम लोग वैसे भी रिसर्च प्रपोजल का फैकल्टी से मान ही रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हम डोज को क्रिएट किया जाए, हैप्पीनेस को मतलब कहाँ किधर से एक्सट्रैक्ट करके, ये भी एक प्रपोजल हो सकता है कि इंसान को खुश रखा जाए, खासकर वो फैकल्टी जो खुश होते ही नहीं है, जो मुस्कुराते ही नहीं है। नम्रता जी, एक चीज बोलता हूँ, एक्चुअली एक हमारे रियल इंसिडेंट्स आपको बता रहा हूँ। हम लोग एक रिफ्रेशर प्रोग्राम कर रहे थे। रिफ्रेशर मतलब एक सीनियर मैनेजमेंट का एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। तो क्या था कि उसमें क्या ईगोज होते हैं सबके अलग अलग, कि भाई ये जो है इतने सीनियर मैनेजर हैं, वो उतने भी सीनियर मैनेजर, वो सबसे सीनियर मैनेजर हैं। तो एक थे वो हंसते नहीं थे, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जूझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बोलूं, वो हंसते नहीं थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि मतलब मेरे सारे एफर्ट जो है वो वेस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है, हंसते नहीं है। एंड यू विल सरप्राइज, ना सीरियस रियल बता रहा हूँ आपको,
मैं वॉशरूम गया और वो सर जबरदस्त हंस रहे थे। तो मैं उनको पूछा कि सर क्या हो गया? अरे बोले सबके सामने हंसे ना अच्छा नहीं लगता है बोले वो, इसलिए बोले मैं यहाँ आके हंस लेता हूँ अकेले में आके। हो सकता है भाई ऐसा किसी का, अगर किसी का ईगो आड़े आ रहा हो हंसने में तो अब हंस लो, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं। वो वॉशरूम में आके हंसते थे अलग से, खूब जम के खिलखिला के हंसते थे। मैं बोला यार वहां सबके सामने हंसेंगे तो लोग कुछ और उसका मतलब समझेंगे, ऐसा है। तो कुछ लोग कोई नहीं, बाद में हंस लेना, बात ठीक है। Are we waiting for something? Yes, Yadav sir. Okay. Final तड़का। सर वंदना मोदी मैडम तो नहीं आ गए हैं? अरे हाँ वो चेक करिए, वो आगे होंगे तो... हार्दिक सर बताएंगे वंदना मैडम आ गए हैं क्या? उन्होंने 2 बजे का बताया शेड्यूल। अभी मेरे पास में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है रमेश चौधरी के पास, उन्होंने वो जो दुबे जी से बात किया कर्णावती जो है 2 बजे यहाँ पे मैसेज से आ जाएंगे ऐसा बताया है। मैं एक बार सदानंद सर से चेक करती हूँ। सदानंद जी मैंने चेक किया था तो सदानंद जी ने ऐसा कहा कि वो 12 से 1 के बीच में आएंगे। तो नहीं यादव सर के लिए ज्वाइन करने करके जी। नेहा सर का यादव सर बोल रहे हैं ज्वाइन किए हैं। यादव सर को लीजिए। हाँ यादव सर को पैनलिस्ट में लीजिए। यस ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ बस आ रहे हैं सर। हाँ यादव सर वेलकम सर। यादव सर नाउ यू कैन। Sir, welcome, sir. We are waiting for you to increase our dopamine, which you have already done, sir, yesterday. Everyone is so thankful yesterday with the announcement of vacation. Oh, well. Vacation. Okay. And everybody was looking for Ritu madam and Polomi madam to touch their feet, because of them, which has, started this. सर आपने कंडीशन नहीं लगाई कि जो वेकेशन में घर से वापस आएगा वो वहाँ की कोई मिठाई लेके आएगा आपके लिए, ऐसा आपने नहीं बोला? वो तो obvious है सर. That is understood. It is understood. Okay. So it is clarified now. Better. Only thing I remember, one joke long time back, which I can tell you people. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. You remember, Indira Gandhi was there to see long time back. She said, if you have any R&D, so you'll get almost 300% income tax benefit, right? So everybody should start open their R&D. Then there was one Marwadi fellow, he said, just I'm saying Marwadi, you don't take it real. Anybody is Marwadi. So yes, he asked, is Namrata, I'm telling. No, sir, I'm not Marwadi. But I'm taking that general. So Marwadi said, 300% you'll get income tax benefit. So he will have R&D, also he will have quick product. So he opened the R&D. Morning he appointed some people and all things. Then they said, no, there will be technology and all those things. So in the evening he comes and he said that, now give me the technology. Already 12 hours are over. So he doesn't know science. He only knows commerce. So he said it should be done. So he said, give the technology. But the scientists were also very smart. Sir, can you ask your daughter to produce a child within 3 months or 2 months? He said, no. So he said, chemical reactions also take their own time. I don't know whether you got the joke or not. It is scientific joke, yes, sir. So it is, a very good negotiator, sir. It takes time, whatever, has to take. Yes, sir. So then what Marwadi fellow said, who left? He said, no, you cannot have a child before 9 months or 7 months, whatever you can.
So it is for anything process, it does take time. A lot of people do show impatience, that happen, if not knowing them. For everything, there is a process, there is a time. So anything else? सर लाफिंग में भी प्रोसेस है कि ये कंटाजियस होती है? लाफिंग में भी कुछ केमिकल लोचा होता होगा, कंटाजियस कैसे हो जाती है? There are कौन बताएगा? Vijay Singh will tell. There are many chemicals which can change your mood to laughing, which can change your mood to sad mood. So there are chemicals. You can make. आयु को कौन सी जरूरत है सर? Happy mood, right? And so, and now you can make them people sleep. You can smell good. So there are chemicals for that. So, but immediately I'm not remembering joke on those chemicals. सर पर आज आपने जो बताया, एक जाम फल को देख के हम सब खुश हो रहे थे, तो आपने सर कुछ कमेंट बोल के हम सबको रोक दिया वहां पे। वो मालूम में तो था, मेरी वाइफ सुबह शाम उसको नमस्ते कर। प्रदीप सर, आज हम लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे थे, तो एक बहुत छोटा सा झाड़ है पर उसमें बहुत बड़ा जामफल है। सबकी नजर गई, तो यादव सर ने पहले ही बोल दिया कि मेरी वाइफ की नजर उस पे है, तो उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैंने ये बोला कि रोज सुबह शाम नमस्ते कर। आपने जामफल बोला, मेरे को एग्जाम फल सुनाई दिया। अच्छा। Sir, the best thing is that when the person at the helm of affair, वो आके अगर सबके साथ में, सब स्टाफ के साथ में मुस्कुरा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंसिडेंट्स, आई थिंक उससे बेस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। सो अभिनंदन सर ने आइडिया कंसीव किया टाइटल का, और आपने आके हम लोगों को साथ में एंड में उसमें हम रैप अप करने में हमें सपोर्ट किया। सो आई थैंक डीन्स, both the deans, Abhinand sir for sharing the title also, conceiving the idea also, Pradeep sir who has always been very very supportive and he tried his best to make the faculties laugh but they didn't laugh। तो हो सकता है उस 500 में से मैं आ रही हूँ सबको, इस सबकी रिकॉर्डिंग है, सबको 10-10 रुपया तो मैं दे के जाती हूँ क्योंकि आप लोग स्माइल नहीं कर रहे थे, तो उसमें आप लोग जरूर जीत गए, ठीक है। और बेस्ट स्माइल जो है पौलमी मैडम को मैंने कहा था, तो उनको 151 मिलेगा और 251 धदुक मोनल को मिलेगा, हमारे स्टूडेंट को, जिसने काफी कोशिश करी। 51 रुपए का अभी भी बचा हुआ है और कोई हंस सकता है तो ज्योति मैडम आप थोड़ा सा मुस्कुराए थे, तो 51 रुपए आपको मिल सकता है। So this is what कोशिश पे नहीं की थी। तुमने कोशिश नहीं करी थी तो तुमको चलो कट गया, 251 मेरे पास आ गया। नहीं, एक भी नहीं चाहिए, आप रख लो। कैंटीन में नाश्ता कर लेंगे। कैंटीन में नाश्ता कर लेंगे। So with this, Abhinand sir, I thank you so much. We tried a lot, but yes, it is very challenging to make people smile and laugh. So comedians, are to be saluted, and still I wish a lot of thanks, Pradeep sir. We expect you to be continue with us in all the works of our turning point. Every time we try to take turns in the turning point. Let's see where we reach. So thank you everyone. So अब सबसे यही है कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। So thank you so much everyone for your I think involvement, participation। ठीक है, हर एक आदमी अपने तरह से खुश होता है, अपनी तरह से एंजॉय करता है। There's a ways and means of everyone। कोई लोग बहुत हाहाकार हंसी हंसते हैं, कुछ लोग गुप्त हंसी हंसते हैं, कुछ लोग सुप्त हंसी हंसते हैं। तो आपका सबका अपना अपना तरीका है, सबको अच्छा लगा, सबने टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एंड अगर आपको हमने थोड़ा सा मुस्कान दिया या आपके चेहरे पे कुछ भी हम आपका अगर चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज कर पाए, सो आई एम सो थैंकफुल, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, खास आज के दौर में खास तौर पे। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है और आप सामने उसको रिएक्ट करके स्माइल देते हो, तो इससे अच्छा किसी के लिए रिवॉर्ड नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए फैंटास्टिक ऑडियंस। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमें